Hello students, welcome back to my channel. Hope you're doing fine. So in this particular video, we will be completing solutions chapter, which is your first chapter for physical chemistry. Alright, I'll try to complete this lecture in one go, but since it's a long chapter, it might take two videos as well. So let's get started. You don't need to write all the notes that I will be discussing because you can get access to all those notes on my Telegram channel, for which I'll be sharing the link in my description box. So let's get started. Enjoy. Alright, so hello guys, welcome back. So what we are going to do today is the first chapter of your physical chemistry class 12th, that is solutions. Okay, so let's enjoy this session, and what we'll be doing is we'll be completing the entire solutions chapter in one go. See what solutions mean basically. Solution is basically a homogeneous mixture that you make when you add a solute in a solvent. Now, what do you mean by a solute and a solvent? Solvent is something that I take in the higher amount, and solute is something that I take in less amount. And when I mix these two things together, if it gives me a homogeneous mixture, then that's a solution. Alright, it's as simple as that. So what do you mean by homogeneous? We talked about this in the previous lecture. Homogeneous means that the composition of solute and solvent is exactly the same in the entire solution. Let's say there is this mixture I have made. So there was a lot of solvent that I had, and I put some solute in it. Okay, now I took these two places, place A and place B. Okay, so when I see these places A and B, a homogeneous homogeneous mixture basically means that the composition of the solute and solvent, let's say ratio. So the ratio of solute is to solvent is the same at A place and it's the same at B place. That's what you call as a homogeneous mixture. Now in your NCERT, there are types of solutions given. So types of solution is basically categorized on the basis of the physical state, on the basis of physical state of your solvent. Okay. See, it's not that if I take water or any liquid, only that is the solution. A solvent can have three physical states: a solid, liquid, and a gaseous solvent as well. Okay, so accordingly, there are three different types of solutions. One is called as the solid solution, then second is liquid solution, and the third is gaseous solution. A solid solution is where the solvent is in solid state. Okay, then a liquid solution is basically when the solvent's physical state is liquid, and likewise if the solvent's physical state is a gas, then that's a gaseous solution. So in your NCERT there's a table given, and I will advise you to learn some examples from there for your boards. It can come for a 1 marker or something. Okay. The next topic, that is concentration terms. अब concentration terms का क्या मतलब है कि क्या concentration है, जो आपने solution prepare किया है उसका क्या concentration है. ठीक है, so इसके लिए let's do an activity. तो मेरे पास ना यहाँ पे 2 ग्लास है पानी के. ठीक है, सेम वॉल्यूम है दोनों का, पानी का, दोनों ग्लासेस में. अब इसमें मैंने क्या किया, इस हाथ में मैंने 1 चम्मच शुगर डाला एंड दूसरे में मैंने 10 चम्मच शुगर का डाला. So I am very sure that you guys know कि ज्यादा concentrated solution कौन सा होगा, जिसमें मैंने 10 स्पून चीनी डाला, वो वाला जो solution बना होगा वो ज्यादा concentrated होगा. करेक्ट, बट हम ये तो क्वालिटेटिव बात होगी कि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है, बट एग्जैक्टली कंसेंट्रेशन क्या है उसको क्वांटिफाई करने के लिए ये कंसेंट्रेशंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड देयर आर एटलीस्ट 8 मेथड्स बाय व्हिच यू कैन कैलकुलेट द कंसेंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस दैट यू प्रिपेयर. ओके, सो आपके पूरे एनसीईआरटी में 8 ऐसे दिए हुए हैं, और ये 8 के 8 जो है इनमें से जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो यहाँ से आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं. ठीक है, सो फर्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म व्हिच इज अ वेरी फेमस वन इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. यू कैन कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय कैलकुलेटिंग इट्स मोलैरिटी. इट इज गिवन बाय कैपिटल M. Okay, now it likewise there is molality. Third is mole fraction.
Okay, molality is given by small m. Then fourth is parts per million. Let's say the water that we drink, it has some dust in it or something. So with respect to water that we drink, of course, the dust particles are very, very less. So if we have to calculate the concentration where the solute here being the dust particles, if it is very, very less, then you calculate it in terms of parts per million. Likewise, we have mass by mass percentage, we have volume by volume percentage. We can also calculate concentration in terms of the strength of the solution, and the last would be mass by volume percentage. Okay, so what we are going to do is we are going to see each and every concentration term separately in the next section. Before this, let's just quickly revise how we used to calculate the number of moles. Number of moles was given by N, and there were three formulas for it. First is, if you know the compound's mass is given to you, then you can use this formula, that is given number or the given amount in grams upon the molecular mass of that compound, right? But let's say if it's a gas, it's not necessary that they will give you the mass of a gas. It's basically volume will be given to you more. So if a given volume for a gas is given, let's say that is in liters, then you divide given volume, that you have to take in liters by the way, and divide it by 22.4, which is a constant value, provided this given volume is given to you at STP conditions. Alright, and the third formula was, if the molecules, the number of molecules are given for something, then you put the number of molecules that are reacting divided by the Avogadro number, that is was 6.02 into 10 to the power 23. So out of all these three formulas, depending upon what is given in the question, we can calculate the number of moles. अब moles निकालना बहुत ज़्यादा important है अगर आपको molarity निकालना है, मतलब basically mostly जितने भी concentrations आपको निकालनी है, आपको पहले moles निकालना पड़ सकता है. Okay, so the first concentration term that we're going to talk about is mass by mass percentage. Okay, so mass by mass percentage of a solution is basically the mass of solute. It's the mass of solute that you will take in grams upon the entire mass of the solution, and because it's in percentage, you'll multiply it by 100. Okay, so this is the formula for mass by mass percentage calculations. Now, if you have to, let's say, calculate mass of solution first. Solution is basically made up of solute and solvent. So whenever you'll have to calculate mass of solution and ये directly आपको question में नहीं दिया होगा, तो probably आपको solute और solvent का mass अलग अलग दिया होगा. तो mass of solution निकालने के लिए क्या करोगे आप? Mass of solute को plus mass of solvent को आपने add कर देना है. You will add both the masses of solute and solvent to get the mass of solution. Right, now in most of the questions what is given is sometimes density will be given to you and basically mass will not be given to you directly. In those cases there's a formula, that is density is equal to mass upon volume. You can apply this formula also to calculate the mass if the question has not given a direct quantity to you. So they would probably give you the value of density and volume so that you can calculate on your own from this formula and then put it in this formula. Okay. Now let's see. Let's quickly see one problem where we will calculate the mass by mass percentage. So calculate mass percentage of NaOH solution when 80 gram of NaOH is added in 160 gram of water. So clearly NaOH is the solute here. Yes, and water is the solvent here. Right, and now NaOH I have taken 80 grams and I have mixed it with 160 grams of water. To calculate the mass by mass percentage, what was the formula? It was the mass of solute
divided by mass of solution, right? Divided by mass of solution multiplied by 100. Now as you can see, mass of solute तो अपने को दिया हुआ है, तो we'll write this as 80, and then mass of solution अपने को नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपने को solute का और solvent का individual mass दिया हुआ है. So the entire mass would be the sum of this. So 160 plus 80 will be 240. Yes, it will be 240 into 100. So what will you get? You will get 100 by 3, that is 33.3% mass percentage of the solution is the answer. Okay, so that's how you have to calculate mass percentages for the solution. Let's also see another question where it's written, calculate mass by mass percentage of H2SO4 solution which is formed by dissolving 50 gram of H2SO4 in 100 gram of solution. Now see, make it a habit. Solution chapter is something जो बहुत ज़्यादा मतलब calculation वाले questions यहाँ से आपको आएंगे, ठीक है? तो calculations के लिए सबसे best approach क्या होता है? Whatever is given in the question, write it in one side, and then what is being asked, उसका आप directly formula लिखो, and then it will be very easy for you to calculate the answer. So calculate the mass by mass percentage. So what's given to us? H2SO4 is the solute here. H2SO4 is the solute here, and that is 50 grams. And solution is basically H2SO4 plus water is the solution here, and the mass of that is 100 grams. What they're asking is mass by mass percentage. So the formula was mass of solute upon mass of solution multiplied by 100. Getting that, mass of solute is given to us 50, and mass of solution this time is directly given to you as 100, and then multiply that by 100, we'll get the answer as 50%, and that would be the answer. So questions are not going to be this easy, but this is just for the head start that you have to calculate mass percentage questions like this. Now let's decode what mass by mass percentage concentration actually means, because in a lot of questions mass percentages will be given to you in the question and they would be asking for molality or molarity values. Okay, so for that you should know how to decode this. So what do you mean by, if it's written in the question, 68% by mass solution of HCl? The first thing that you'll notice is HCl is the solute here. Okay, water, until stated otherwise, water is the solvent here. Okay, now they have created a solution where it is 68% by mass. That means it is 68 by 100 into 100. And what was written above? It was the mass of solute. So that means 68 gram of HCl is mixed to form 100 gram of, what was this? Denominator was the mass of solution. So to form 100 gram of solution. Alright people, so 68 gram is the mass of solute and 100 gram would be the mass of the solution. So whenever the mass percentage is given to you in this form, you can write it in 68 gram in 100 gram of overall solution. That's how you will decode it. Now you got the number, you got the mass of solute from here, you got the mass of solution from here, and if you subtract these two quantities, you can get the mass of solvent also if required in the question. We'll see how it will be required in the next section. So यहाँ तक समझ में आ गया? Now, likewise, जैसे mass percentage होता है, likewise आप volume percentage भी निकाल सकते हो. So, volume by volume percentage निकालने का formula भी almost same है. Just switch the quantities. जहाँ ऊपर mass किया था, उसके जगह पे volume by volume percentage तब use होगा जब आपके solute and solvent क्या है? Liquid state में है. So, it will be volume of solute upon volume of solution, again multiplied by
100. Now you have to remember that if you want this percentage thing, then the volume, the units of the volume has to be the same. So if you're writing volume of solute in liters, you need to take volume of solution also in liters. Or if you're taking volume of solute in ml, let's say, then the volume of solution will also be in ml. ठीक है, इस तरीके से you can get the value of volume परसेंटेज. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है. लाइकवाइज अगर अपने को दिया है देयर इज लेट्स से 60% बाय वॉल्यूम, 60% by volume solution of H2SO4. Now, what does this mean? This 60% is a percentage by volume. So that means 60 ml of H2SO4 is added to make 100 ml of solution. Alright, try to take this in ml. That way it will be much easier for you if volume percentage is given to you. Now likewise the third quantity, the third concentration term that we have is mass by volume percentage. Now here it gets a little bit trickier. What you write is mass by volume percentage, and just like this, mass is in numerator, so that denotes the mass of solute. Mass of solute in grams, definitely in grams, divided by volume of solution, divided by volume of solution in ml, multiplied by 100, multiplied by 100. Okay people, so this is how you will calculate mass by volume percentage. Let's say again there is a 60% mass by volume H2SO4 solution. Okay, so if it is given 60% mass by volume solution of H2SO4, how will you decode this? अपन करेंगे इसको 60 gram of H2SO4 is dissolved in water to give 100 ml of your entire H2SO4 solution. Do we get this? It's important that you note here, यहाँ पे जो solution का volume होगा, we are taking this in ml. So if it's 60% mass by volume, that means 60 gram of solute present in 100 ml of your solution. Okay. Now there's one more thing. There's one concentration term which is not given in your NCERT, but mostly it can come as well. Strength. Strength क्या होता है? इसी फॉर्मूला में से अपन बस 100 हटा दें. 100 हटा दिए तो क्या रहेगा? Mass of solute in grams upon volume of the solution in ml. Now, if I just remove this multiplication by 100, then this is what you call as strength. As you can see, the unit of strength would be gram per ml, provided you take volume of solution in ml. Otherwise, there's one more unit that's used, that is gram per liter. When the volume of solution is given to you in liters, then the unit would be gram per liter. When you take volume of solution in ml, then gram per ml will be your unit. I hope this much is clear. Next concentration term that we'll be talking about is molarity. ठीक है, तो मोलारिटी जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला देख लो आप पहले. मोलारिटी किसी भी चीज की जो निकालते हैं उसके लिए डिनोट करते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स एम से डिनोट करते हो, मोलारिटी करते हो कैपिटल एम से. इसको निकालने के लिए द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution, provided it is given in liters. So if in question volume of solution is probably given in ml or something, you have to change it into liters. And if it is not in liters, let's say there is number of moles of solute upon volume of solution. So if you wish to take this volume of solution just for the calculation purposes, if it is easy to take in ml, so if you want to take this in ml, then you have to change it by dividing by 1000, so that goes up. So your other formula for molarity can be this also, provided the volume of solution, if you take in ml, then use this formula. If you take volume of solution in liters, then it's a very straight formula like
this. Now, if I talk about unit here, the unit would be to calculate units, what we do, we just input these units. So number of moles are given in moles divided by volume of solution, which is, let's say, taken in liter. So the overall unit is mole upon liter, or you call this as mole per liter. Mole per liter is also called as molar. It is also called as molar. Now, but mind you, 1 liter is as good as 1 decimeter cube. So whenever instead of liter, a decimeter cube unit is given to you, it means exactly the same. The quantity remains the same. It doesn't mean exactly the same. The quantity remains the same. So 1 liter is as good as 1 decimeter cube. So there's one more unit, which is mole inverse decimeter cube. So this is your SI unit, but you can also use molar as the word. Okay, so that's molarity for you. Now the next concentration term, which it sounds almost the same as molarity, just instead of R there is an L. So if you have to calculate molarity, first of all, molality, it is slightly different, as to it is given by an expression that is small m, and for molality it is number of moles of solute. So this part is the same, number of moles of solute divided by, this time it's not volume of solution, but rather the mass of solvent, that you have to take in kg. Mass of solvent that you have to take in kg. This is the only concentration term जहां पे solvent का mass use करके आप concentration निकालते हो, तो इसको ऐसे याद रखना है. ठीक है भाई. अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, मान लो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट जो है केजी में ना देके क्वेश्चन में ग्राम्स में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको ग्राम्स में अगर आपको यूज करना है तो बेसिकली वही सेम चीज, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया divided by mass of solvent आ गया. But if you wish to take this in grams only and you want to use only that, then you have to multiply it by 1000 to get this in kgs. So you can use any of the two formulas depending upon how you want to proceed. Okay. Now, molarity's unit is basically moles upon kg. So the unit of molality, is mole per kg. Now, mole per kg is also called as molar sometimes. Okay, or you can just write a small m after the quantity. So these are the ways that you can write the unit of molarity. Now, these concentration values are basically temperature dependent. ठीक है जी, तो बेसिकली आप इसका टेम्परेचर चेंज करते रहोगे ना, तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स जो है ये चेंज हो जाएंगी, प्रोवाइडेड उसमें क्या बोलते हैं, मोलालिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है. सो मोलालिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम जो है यूज ही नहीं होता. सो वॉल्यूम इज दैट एस्पेक्ट व्हिच चेंजेस व्हेन अ टेम्परेचर बेसिकली चेंजेस. नाउ सिंस टू कैलकुलेट मोलालिटी वी आर नॉट यूजिंग वॉल्यूम ऑफ एनी काइंड, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ मोलालिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. सो इट्स अ टेम्परेचर independent quantity. It's a temperature independent quantity. But is molarity a temperature independent? Not at all. Molarity has volume of solution in it in the denominator, so that volume of the solution will change with temperature, and that's why the molarity value will also change. Now let's look into some questions. Calculate molarity of a solution of urea. Okay, calculate molarity of a solution of urea which is formed by taking 120 gram of urea mixed to form a 4 liter of the entire solution. तो मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले गिवन लिख लो एक साइड में. गिवन क्या है, यूरिया जो है एक सॉल्यूट है और ये कितना है, इट इज 120 ग्राम्स. और अपना सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन कैसे बना है, it is basically formed by mixing urea with water, right? And ये जो solution है इसका आपको volume दिया हुआ है 4 liter. So that is all given to you. आपको calculate क्या करना है,
मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज जो है दैट इज सी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते। अगर आपको गिवन एक साइड में लिख दो आप और कैलकुलेट क्या करना उसका फॉर्मूला लिख दो, यू विल नो दैट इसमें एक ऐसा चीज है जो मिसिंग होगा। आई टेल यू, जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने लिखा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divided by volume of solution. Now see this expression guys, molarity एक ऐसा unknown variable है, नंबर ऑफ मोल्स एक अननोन वेरिएबल है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको लीटर्स में लेना है वो एक अननोन वेरिएबल है। तो तीन अननोन वेरिएबल है इस फॉर्मूला में। आपको पूछ क्या रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मतलब ये तो आउट है, ये तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है डेफिनेटली कि ये और ये दोनों के दोनों आपको गिवन होंगे किसी ना किसी फॉर्म में। अब क्वेश्चन बनाने वाला क्या कर सकता है, चाहे तो उसको डायरेक्ट दे सकता है आपको, या दूसरा क्या देगा, मान लो एक चीज उसने डायरेक्ट दे दी बट दूसरी चीज उसने इनडायरेक्ट दे दी। जस्ट लाइक इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आपको डायरेक्ट 4 लीटर दिया हुआ है, लेकिन क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए। क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। सो मास ऑफ यूरिया इज गिवन टू यू, दैट इज 120 ग्राम्स। अब यूरिया इज NH2CO NH2, so इसके नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे बिफोर एक्चुअली पुटिंग दिस इन द फॉर्मूला। सो व्हाट यू कैन डू इज, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे क्या था, मास अपॉन मोलर मास। अब व्हाट इज द मास, गिवन मास ऑफ यूरिया, it is 120, and what is the molar mass, if you calculate it you will get 60 molar mass, ठीक है। so that gives you the number of moles as 2. now you put the number of moles of solute here as 2 divided by the volume of solution, 4 liter is given to you, so you can write this 4 because you have to take this in liters, so problem solved. so you'll get 0.5 molar, so you can write this as capital M and that's your answer. Okay, so it's as easy as this. The other way to do this question is directly number of moles of solute के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मोलैरिटी निकालनी है, आप डायरेक्टली इधर number of moles n by v कर दो, ठीक है, सॉरी n by m कर दो, that is m is capital M is for molar mass divided by volume of solution. Okay, so you could have directly sorry mass, yes, so mass कर दो यहाँ पे, that is given mass, ये पुट कर दिया, मोलर मास ये पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दिया। सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली आल्सो, सो इट्स ऑन यू विच एवर वे यू लाइक, बट जो भी आपका ये फॉर्मूला होगा ना उसमें एक चीज आपको नहीं दी होगी जो कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी होगी, ठीक है। अब लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन दैट कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड आई थिंक आप लोग को ये टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मोलैरिटी, पहली बात मोलैरिटी नहीं, क्या बोल रहा है, मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन टेकन 40% बाय मास। तो मैंने एक ऐसा NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जो 40% बाय मास है बेसिकली, सो उसका मोलैरिटी क्या है ये पूछ रहा है। एक कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म अपने को निकालना है, ठीक है जी। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है गाइस, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का आने चाहिए। सो ये क्या है, दिस इज NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन जो है वो क्या है 40% बाय मास परसेंटेज है, करेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कैसे डिकोड करना है, 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट, है ना, 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्यूशन, करेक्ट। अब हमने ये भी किया था कि जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है दैट गिव्स यू द मास ऑफ सॉल्यूशन, यस। सो आपको बोल क्या रहा है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए अब यहां जाओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है उसको लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अपने को इस फॉर्मूला को देख के पता चल रहा है कि ये जो NaOH है इसका मोलैरिटी निकालने के लिए ये मतलब आपको अननोन है, सो नंबर ऑफ मोल्स भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया ही हुआ है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया ही होगा, अभी इनडायरेक्टली दिया है। लेट्स सी हाउ, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं
दे दिए, मास दिया हुआ है, so उससे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH will be the mass that is given divided by the molar mass of NaOH. What is the molar mass of NaOH? It's the mass of sodium plus mass of oxygen plus mass of hydrogen. So that comes out to be 23, 16 and 1. कितना हो गया ये? It will be 40. So 40 से 40 cut. ये आ गया अपना number of moles 1. So let's put this 1 here. And what is the mass of solvent? देखो मैंने इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लिखा है. अब तुमको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100, मास ऑफ सॉल्वेंट तुमको पता नहीं है तो इसको ऐसे एज इट इज रहने दो, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40. So if you subtract these two quantities, you will get the mass of solvent. You will get the mass of solvent as 60 grams. So you can write this as 60 grams. Now in the question, in the formula, I told you that you have to take this in kgs. Now if you don't take this in kg and you put this 60 gram as the value, what additional you had to do? You had to multiply it by 1000 more. And if you calculate it, you will get the answer. That is 1000 by 60. So 0 से 0 cut and you can do the calculations further. The next topic is parts per million. Now what do you mean by parts per million? इस ये अलग एक और concentration term निकालने का एक तरीका है. एंड इसमें ये इसको कब यूज करते हैं हम बेसिकली, जो हम घर में ड्रिंकिंग वाटर जैसे जो यूज करते हैं, है ना, आरओ सिस्टम जो यूज करते हैं, तो उसमें जो थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज होती है ना, दोज इम्प्योरिटीज आर व्हाट बेसिकली सॉल्यूट्स आर. और तो बेसिकली जब कम ट्रेसेस अमाउंट में होता है, जब बहुत मिनिमम अमाउंट में सॉल्यूट होता है, तो उसके अलावा ये छोटी क्वांटिटीज यूज करते हैं जिनको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन. अब इसको निकालने का देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. parts per million is equal to the number of parts. Now these parts can be molecules, ions or whatever case you're taking. So number of parts of all the components, number of parts of the components, let's say we are talking about sodium ions in water, or we are talking about some other trace, then the number of parts of that divided by the total number of parts of all the components in the solution. Of all the components in the solution multiplied by 10 to the power 6, since we are talking about per million. Okay, so इस पे बड़ा easy सा question आता है. They can directly just ask you what to calculate parts per million. जब आपको दिया होगा कि इतना amount of total solution, इतना molecules है उसमें, मान लो ये solute इतना कम है, उसका amount दे देंगे, and then you'll just have to put these in these values and then you'll get the answer in parts per million. Okay. Now the next one is very very important as far as board exams are concerned. ये है mole fraction. ठीक है, इसको समझने के लिए let's take two examples. आपके पास एक box है, उसमें there are two kinds of balls. ठीक है, orange ball है और blue balls है. ठीक है, अब orange balls आपके पास कितने हैं? 2 है, और ये बॉल्स ब्लू वाली बॉल्स कितनी है? 3 है. सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स इन द होल बॉक्स, देन व्हाट विल यू डू? टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज 2 plus 3. तो आपको 2/5 फ्रैक्शन दे देगा. लाइकवाइज अगर आपको इसका फ्रैक्शन निकालना है कि अपने बॉक्स में ब्लू बॉल्स कितनी है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट, तो हम ले लेंगे 3 डिवाइडेड बाय अगेन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज 5. सो ये आ जाएगा 3/5. तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन यूज करते हैं ना. सो इन द सेम वे मोल फ्रैक्शन मतलब एक हमने जो वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें क्या बोलते हैं, सॉल्यूट का क्या फ्रैक्शन है, टोटल मोल फ्रैक्शन, और सॉल्वेंट का क्या मोल फ्रैक्शन. सो ये हम इंडिविजुअली देखते हैं. ठीक है, मोल फ्रैक्शन जिस भी चीज का निकालना है, सबसे पहले तो आपके जो चैप्टर में है ना, आपको बाइनरी सॉल्यूशंस का ही एग्जांपल आता है मोस्टली. व्हाट डू यू मीन बाय अ बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें देयर इज वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, नथिंग एल्स.
लाइकवाइज मान लो अपने पास एक सॉल्वेंट है और उसमें दो सॉल्यूट्स डाल दिए, चीनी भी डाल दी और नमक भी डाल दिया, तो वो दो सॉल्यूट्स हो गए और पानी सॉल्वेंट हो गया। तो अगर तीन कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, इस तरीके से फर्दर ऑन। बट आपको क्या दिए हुए हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस आपके सिलेबस में है। सो मान लो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है जिसमें सॉल्यूट जो है वो क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 मोल्स हैं, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूशन में वो कितने हैं, 10 मोल्स दिए हुए हैं। सो नेचुरली अच्छा फिर ये मोल फ्रैक्शन जो है आप डिनोट किससे करते हो, कैपिटल एक्स है। तो अगर इस कैपिटल एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन मेरे को सॉल्यूट का निकालना है, तो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स of solute, that is 5 divided by total number of moles in the solution, which will be 5 plus 10, so that is 15। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सो अब आपको अगर बोले सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप वापस से तो करने नहीं लगोगे, आप क्या करोगे, ये 1/3 है तो ये क्या है, 2/3 मोल फ्रैक्शन होगा। कैसे निकाला हमने, वी विल सब्ट्रैक्ट 1 by the mole fraction of the solute to get our answer 2/3। ओके पीपल, सो अगर मेरे को इसका फॉर्मूला बताना है, then the formula will be mole fraction of a component, let's say we are talking about solute, be given as number of moles of solute divided by total number of moles divided by total number of moles in the solution, इन द सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। बट फॉर्मूला पे ज्यादा कंसेंट्रेट ना करके जस्ट टेक इट लाइक फ्रैक्शन निकालना आपको किसी चीज का, बट इसमें इन टर्म्स ऑफ मोल निकालना है आपको। क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल्स नहीं देंगे, हो सकता है मास दे दे कोई सॉल्यूट का, तो उधर मास से पहले आप मोल्स निकालोगे एंड देन यू विल पुट इन द फॉर्मूला एंड गेट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो वी विल टेक अ क्विक एग्जांपल हियर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन of when 40% by mass solution of aqueous NaOH solution is taken। So आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है NaOH का, है ना, क्या दिया हुआ, aqueous NaOH, so that means I've put in NaOH as the solute and our water is the solvent, right। अब अपने को इंफॉर्मेशन क्या दी है, अपने को इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ सॉल्यूशन जो है 40% बाय मास रेशियो में है। सो 40% ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज गिवन टू अस। सो मैंने आपको ये बताया था डिकोड कैसे करना होता है। इट मींस दैट 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 grams of solution, in 100 grams of solution, है ना। तो अगर मेरे को इंडिविजुअली इनका क्या निकालना है, अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, सो आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। सो दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सो नाउ आई नो कि मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं दोनों के, तो इधर NaOH लिख देते हैं और इधर वाटर लिख देते हैं। अब अपने पास NaOH कितना मास है, 40 ग्राम्स है, वाटर कितना है डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 40 ग्राम, टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH है, तो बाकी जो रह गया दैट इज योर सॉल्वेंट वाटर। सो 60 ग्राम जो है दैट इज वाटर। अब 40 नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ NaOH दैट इज 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH जो हमने किया था पिछले लेक्चर में, दैट इज 40। सो ये आ जाएगा अपना 1। What about this? इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 18, 60 डिवाइडेड बाय 18, so that comes out to be 3.33 something, right? So ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स वाटर के और ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स NaOH। Now what we have to do is just put in this value. So ये आ जाएगा अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH is number of moles of NaOH is 1 plus 3.33. Let's take this. So it will be 1 plus 4.33. So that will be 1 upon 4.33. That will come out to be 0.23 as the mole fraction. अब ये मोल फ्रैक्शन किसका है, इट इज फॉर NaOH। अब अगर आपको यही बोला कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो, आप क्या करोगे, आप वापस से तो नहीं करने लग जाओगे, मैंने आपको बताया 1 में से इसको माइनस कर दो तो गेट दैट वैल्यू। ठीक है जी। सो बेसिकली इन अ बाइनरी सॉल्यूशन व्हाट इज, आई विल चेंज द कलर। सो अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है
प्लस मेरे पास मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है, दोनों का जो सम आना चाहिए मोल फ्रैक्शन का, दैट हैज टू कम एज 1, है ना। जैसे मैंने आपको वही सेम लॉजिक बताया, 2/5 3/5 दोनों को ऐड करोगे यू गेट 1, है ना। तो इन फ्रैक्शंस की बात करो तो जब सारे को आप ऐड करोगे यू हैव टू हैव 1, दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 from the 0.23 to get the mole fraction of H2O. ना जो नेक्स्ट बात हमने करनी है दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक। सो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हो गया वो तो हो गया डन। अब है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, आप लेट्स डू एन एक्टिविटी। सो बेसिकली मेरे पास एक बीकर है जिसमें पानी है, ठीक है, वो पानी का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है। अब आप क्या करो, आप चीनी डालने लगो। पहले आपने 1 चम्मच चीनी डाली, you dissolve it, completely dissolved. Then आपने दूसरी चम्मच डाली, वो भी dissolve. And you keep on repeating this until you get a saturated solution. Until you get a saturated solution. So saturated solution क्या होता है basically, जब और ज्यादा solute जो है उसमें नहीं मिक्स होएगा, आपने मैक्सिमम मिक्स ऑलरेडी कर दिया है। द सॉल्यूशन दैट यू गेट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। सो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उस टाइम की जो मोलैरिटी होती है, कंसेंट्रेशन जो होती है सॉल्यूशन की, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसकी जो कंसेंट्रेशन होती है उस टाइम की, उसको हम एक स्पेशल बोल देते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सो इट इज बेसिकली व्हेन मैक्सिमम सॉल्यूट इज एडेड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को हम किससे देते हैं, कैपिटल एस से देते हैं। सो सॉल्युबिलिटी इज नथिंग, इट्स द कंसेंट्रेशन of a saturated solution, of a saturated solution। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम ये कहते हैं। सो नेचुरली इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। जनरली हम इसको मोल पर लीटर पे करते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग न्यू, यू हैव डन दिस इन क्लास 11th। इक्विलिब्रियम चैप्टर में सॉल्युबिलिटी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और वो सारे वो सेम सॉल्युबिलिटी है ये, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, दो ऐसे सॉल्यूशंस है। पहला सॉल्यूशन तो है जो सॉलिड इन लिक्विड वाला जो सॉल्यूशंस होते हैं, दैट मींस सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, एंड द सेकंड इज गैस इन लिक्विड, जैसे CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर या O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो गैस इन लिक्विड, ये दो को आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और इसका ये व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वी वांट टू नो व्हाट आर ऑल द फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। इससे क्या होगा, मेरे को ऐसे फैक्टर्स जानने हैं जिससे मैं ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने क्रिएट किया है इसका मैं सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज कर पाऊं। व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से अपन सॉल्यूट और ज्यादा डिसॉल्व कर पाए इन द सॉल्वेंट। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेट्स टेक अ वेरी इजी एग्जांपल। एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी होते हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं पानी की, है ना। ऑक्सीजन तो उनको भी चाहिए, बट वो ऑक्सीजन जो है इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। Now what I want to do is what should I do कि ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाए पानी में, ठीक है। सो मेरे को अगर ये फैक्टर्स पता चल गए सॉल्युबिलिटी के तो मैं वो इंप्लीमेंट कर सकती हूँ एंड उसमें ऑक्सीजन का जो कंटेंट है इन द सॉल्यूशन आई कैन इंक्रीज इट, दैट्स द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। बट बिफोर डिगिंग इन दैट आपको थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल अपने दिमाग में पूरे टाइम पे आपने क्या रखना है, आपके पास इस तरीके का एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में एक लिक्विड सॉल्वेंट है। सो सॉलिड इन लिक्विड मतलब इन से बाद में जो लिखते हैं ये सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉलिड जो होता है दैट इज योर सॉल्यूट। सो मैंने क्या किया, मैंने पानी ले लिया, सिंपल से एग्जांपल रखो, पानी ले लिया और उसमें क्या डाल दिया, चीनी डाल दी, शुगर। सो शुगर इज द सॉलिड एयर एंड वाटर इज द लिक्विड एयर। इसका मतलब ये है, तो जो शुगर सॉल्यूशंस है, सॉल्ट सॉल्यूशंस है, उनकी बात करें कि उस पे सॉल्युबिलिटी पे कैसे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दैट मींस अगर मैंने इस सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई किया तो इससे सॉल्युबिलिटी पे क्या चेंज होगा। सो द फर्स्ट थिंग इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें बच्चे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। सो इवन इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इन अ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन कुछ ज्यादा नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर ऑलरेडी क्वाइट टाइटली पैक्ड, है ना। आप इसमें और ज्यादा प्रेशर अगर दो भी गए तो भी वो सॉलिड मॉलिक्यूल ज्यादा इधर से उधर
घूम नहीं सकते, मेकिंग मोर स्पेस फॉर द अदर सॉलिड मॉलिक्यूल्स, दैट कैन जस्ट नॉट हैपन। तो आप प्रेशर कितना ही इंक्रीज करो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी। सो कभी भी आता है तो योर आंसर शुड बी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रेशर ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, चाहे तो उसमें कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होता है ना, चाहे तो उनमें कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होता है या उनमें डायपोल मोमेंट नहीं होता। करेक्ट। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डायपोल मोमेंट होता है उन सारे मॉलिक्यूल्स को अपन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स, देयर इज सम पोलैरिटी इन देम। और अगर उनमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, मान लो कोई नलिफाई हो गया, एक डायपोल मोमेंट इधर एक इधर, तो वो कैंसिल आउट हो गया, इस तरीके के जो जिसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता, दीज कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है। अब इसका क्या फायदा है यहाँ पे पढ़ने का? ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है इसके बारे में बात करते हैं। ये बोल रहा है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप मिक्स करने की ट्राई कर रहे हो, दे शुड हैव सेम नेचर। दैट मीन्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है। दैट मीन्स एक पोलर सॉल्यूट will be mixed with a polar solvent, है ना। If you try to mix a non-polar solute molecule in a polar solvent, that is just not possible. So like dissolves like, a polar solute will be dissolved in a polar solvent, non-polar solute will be dissolved in a non-polar solvent. ठीक है। So it is as simple as that. Next third factor, अब अच्छा इसका heading क्या बनता है, ये question आता है, what are the factors affecting solubility of a solid in a liquid। ठीक है जी। So the third factor is effect of temperature। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन आपका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो किस तरीके का है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? आपने कोई एक टम्बलर लिया, उसमें आपने सॉल्वेंट जो है वो थाई एंड यू एडेड सम सॉल्यूट इन इट। अब व्हेन यू डिसॉल्विंग इट, दैट इज कॉल्ड एज द डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब उसके टाइम पे दो चीज हो सकती है, चाहे तो कुछ हीट रिलीज होगी, है ना। सो योर डिसोल्यूशन प्रोसेस कैन बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, इट कैन बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या जब आप मिक्स कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको हीट देनी पड़ सकती है। सो दैट इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज योर एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। सो इट काइंड ऑफ डिपेंड्स अपॉन आपका एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है कि एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है। अगर एक कोई एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हुआ, उसमें आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उससे एक अलग कहानी है। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन हुआ, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो अगर कभी भी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ली शार्टिलियर्स के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। ओके, सो ये लर्न फॉर वन, दैट इज फॉर एंडोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक को उल्टा हो जाएगा। सो एंडोथर्मिक आपका डिसोल्यूशन अगर हुआ, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आई कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, एंड इन केस ऑफ एन एक्सोथर्मिक it will be totally opposite. Temperature is inversely proportional to solubility. Okay, so basically exothermic dissolution में अपने को टेम्परेचर कम चाहिए और एंडोथर्मिक में अपने को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए to increase the solubilities. Alright, अब ये सिनेरियो जो है, it is not true for all the kind of solutions. It is true for only solid and liquid solutions. Now the second is the solubility of a gas in liquid. अब gas and a liquid का आपको अगर एग्जांपल याद रखना है, just imagine that there is water in a beaker and there is dissolved oxygen in here or dissolved CO2 in here, है ना। ऑक्सीजन ले लेते हैं बस। So ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं dissolved in water, so that's an example of a gaseous गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। अब ये आ जाएंगे अपने तीन फैक्टर्स। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, सेकंड टेम्परेचर पे इफेक्ट, टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, और थर्ड प्रेशर का भी फर्क पड़ता है यहाँ पे। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ गैस? आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही एक गैसियस स्टेट का एक चैप्टर था 11th में, वहां पे पढ़ा होगा नेचर ऑफ गैस। कुछ गैसेस होती है जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कुछ गैसेस होती है जिनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते। सो ऐसी गैसेस जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं आराम से, उनको बोलते हैं कंप्रेसिबल गैसेस। क्या बोलते हैं उनको? कंप्रेसिबल
गैसेस, और ऐसी कुछ गैसेस थी जो कंप्रेस नहीं हो पाते. व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिंग? लिक्विफाइंग देम. गैसेस को लिक्विफाई करके स्टोर करते हैं, इसलिए उसको कंप्रेसिबल गैसेस बोलोगे. सो ऐसी गैसेस जो नहीं कंप्रेस हो पाती, दे आर कॉल्ड एज नॉन कंप्रेसिबल गैसेस. ठीक है. अब नॉन कंप्रेसिबल गैसेस जो होते थे, एक तो हाइड्रोजन थी, एक हीलियम थी, O2 थी एंड समथिंग लाइक दैट. कंप्रेसिबल में बाकी सारी आ गई, जितनी भी CO2 आ गई, ठीक है, NO2 आ गई, SO2 आ गई, ओजोन आ गई एंड ऑल दैट. सो ये नेचर ऑफ गैस का क्या मतलब है? हम ये बोलते हैं कि जो नॉन कंप्रेसिबल गैसेस होती है ना, वो इजीली सॉल्युबिलिटी पे ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता. जो कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं, ओनली देयर सॉल्युबिलिटी कैन increase. ठीक है. So non-compressible gases cannot increase in a particular solution because the solubility will not have any effect on those. But your compressible gases, उनका solubility आप हमेशा increase कर सकते हो. The second is effect of temperature. Now all the gases when dissolved in a liquid, they are basically exothermic in nature. They are exothermic in nature. ठीक है. So all the dissolution process of a gas in a liquid is an exothermic process. So exothermic अगर होगा तो आपको पता है टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. दैट मीन्स अगर कोई गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो लो टेम्परेचर विल बी फेवरेबल ऑलवेज. यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि दो अलग अलग टाइप के. नेचुरली गैसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड आर एक्सोथर्मिक, दे ऑलवेज रिलीज हीट. ठीक है. सो ये याद रखिए हमने, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. ठीक है भाई. अब आ जाएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वह बिल्कुल डायरेक्ट चीज है. अब देखो तुम्हारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूशन में, आप इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करने लगे. सो व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, व्हाट यू आर डूइंग इज गैसियस मॉलिक्यूल्स को आप पास पास में ला रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ी जो पास में और जगह है वो वेकेंट हो गई. सो मोर गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन कम, so solubility will increase. So whenever we increase the pressure, अपन क्या कर सकते हैं, solubility कोई भी चीज की increase कर सकते हैं in a gas and liquid kind of solution. Okay, so pressure will be directly proportional to solubility. So इसी से related एक there was a scientist जिसका नाम था हेनरीज. He worked on this particular factor alone. प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का इसने बहुत ज्यादा रिलेशन देखा कि व्हाट इज द रिलेशन. ठीक है. सेइंग हेनरीज लॉ. सो हेनरीज लॉ जो है ये बेसिकली प्रेशर का जो इफेक्ट होता है इन अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस उस पे ही है. सो हेनरीज लॉ का बेसिक ये क्या था, प्रेशर जो है जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे गैस का, उतना ज्यादा क्या होगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन विल इंक्रीज. नेचुरली अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने की बात करो, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हियर गैस इन दिस केस, तो वो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा ज्यादा ही होगा. तो एक ही बात है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना उसको इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इसने बताया. सो इट स्टेट्स Henry's law states that the partial pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of that gas dissolved in solvent. ठीक है जी. So this is the Henry's law. अब जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन आप लगाते हो, लेट्स से आपने इधर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया, ऐसे P बोला, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होता है. सो व्हेनेवर यू हैव टू इक्वेट इट, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय सम काइंड ऑफ कांस्टेंट. सो इस केस में जो कांस्टेंट था वो इसने क्या लिया, KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. अभी KH क्या है, दिस इज योर हेनरीज कांस्टेंट. ठीक है, अपनी नाम पे इसने लगा दिया हेनरीज कांस्टेंट करके. सो जब भी अपने को पार्शियल प्रेशर निकालना है
तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए उस गैस के लिए और मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए उस गैस के लिए, या बेसिकली इन तीन वेरिएबल्स में से कोई भी दो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको तीसरा अपने आप फाइंड करना होगा। अभी जो हेनरीज कांस्टेंट है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट लाइक एवोगाड्रो जिसकी मैं आपको वैल्यू दे दूं। ये हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इट इज डिफरेंट फॉर ऑल द गैसेस। हर गैस की एक स्पेसिफिक KH वैल्यू होती है, बट वो जो KH वैल्यू होती है, मान लो ऑक्सीजन की जो KH वैल्यू है, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। ठीक है, सो इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस। ठीक है, अब एक छोटा सा ग्राफ है जो आता है बहुत बार, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दूं, P इज इक्वल टू KH, X आता है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ले लिया y एक्सिस पे हमने, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ले लिया सॉल्यूशन में। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, जब भी आप इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्राफ किस तरीके का है, ये आपने y पे लिया है, मोल फ्रैक्शन आपने x एक्सिस पे लिया है, तो ये y इज इक्वल टू mx काइंड ऑफ ग्राफ है, सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। एंड व्हाट विल बी द स्लोप हियर, the slope is this m, so m corresponds to your Henry's constant, that is KH। ठीक है जी। Now the next topic that I really want to talk about is vapor pressure। अब vapor pressure का क्या मतलब होता है, vapor pressure समझने के लिए पहले समझो कि solids होते हैं, liquids होते हैं, gas होते हैं। liquids को जब हम high temperature देते हैं तो वो vapor state में चल जाते हैं। vapor state में जाना मतलब इधर solvent molecules जो हैं, ये यहाँ से आप क्या दोगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत you'll give certain temperature here, और ज्यादा टेम्परेचर देने से क्या होगा, these molecules will go in their vapor state, है ना, लिक्विड स्टेट से वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे। ऐसे सारे के सारे सब्सटेंसेस जिससे लिक्विड से उसके वेपर्स बन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। क्या बोलते हैं उसको, वोलेटाइल। सो हमने देखना है कि जो वोलेटाइल जैसे मान लो अब यहाँ पे ये आपके वेपर्स बन गए, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर, ये जो वेपर्स होते हैं ये इस सरफेस पे इस तरीके से एक प्रेशर अप्लाई करने लग जाते हैं डाउन साइड इधर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो वेपर प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय योर वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ योर लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो वेपर प्रेशर is the pressure applied by vapor molecules on the surface of liquid, है ना। अब ये जो वेपर प्रेशर है इसकी वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है, आप खुद सोचो। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो जो भी आप वेपर प्रेशर जिसका देख रहे हो वोलेटाइल तो होना चाहिए, तभी तो वेपर प्रेशर होगा उसको कुछ ना कुछ। जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का थोड़ा ना कुछ वेपर प्रेशर हो सकता है, बिकॉज ग्लूकोज कैन नॉट चेंज इनटू वेपर मॉलिक्यूल्स। सो वोलेटाइल होना चाहिए। दूसरा, आफ्टर वोलेटिलिटी जितना आपके मॉलिक्यूल्स वेपर्स, मतलब बेसिकली जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतना ज्यादा वो नीचे के साइड पे प्रेशर ज्यादा लगाएंगे एंड वेपर प्रेशर विल बी मोर इन दैट केस। सो बेसिकली मोर द वेपर्स, more will be your vapor pressure, as simple as that। and ये वेपर ज्यादा कैसे हो सकते हैं, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे, ज्यादा वेपर्स ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर विल बी मोर। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, मान लो आपने जो लिया हुआ है यूटेंसिल का सरफेस एरिया ज्यादा हो तो लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे, उससे ज्यादा बनेंगे वेपर्स, एंड दैट इज व्हेन वेपर प्रेशर विल अगेन बी मोर। तो ये कुछ ऐसे क्वालिटीज है जो आपको देखनी है। Now, let's talk about vapor pressure of liquid solutions। लिक्विड सॉल्यूशंस मतलब क्या है, आपने जो सॉल्वेंट लिया और जो सॉल्यूट लिया दोनों ही लिक्विड स्टेट के हैं, है ना। एग्जाम्पल मान लो इथेनॉल एंड वाटर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, समथिंग लाइक दैट। सो इस लिक्विड सॉल्यूशंस की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड्स आर ऑलवेज वोलेटाइल, वोलेटाइल। सो अगर वो वोलेटाइल है, लेट्स से अपने पास दो लिक्विड्स है A एंड B, देयर आर टू लिक्विड्स। अब ये इनके मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी रैंडमली प्रेजेंट होंगे व्हेन यू मेक अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट, करेक्ट। यहाँ पे इधर इधर ऐसे रैंडमली इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। सो इफ आई टॉक अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, दैट विल नॉट ओनली बी कंट्रीब्यूटेड बाय वन लिक्विड, रादर इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि उन दोनों के वेपर्स बन सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस देयर वाज अ गाय जिसने इस पे काम किया था, उसका नाम है राउल्ट। क्या नाम है उसका,
राउल्ट्स लॉ, इट इज राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला, लिखो, इट स्टेट्स, राउल्ट्स लॉ ने क्या किया है, हेनरीज लॉ का ही उसने क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस पे ही उसने अपना अप्लाई कर दिया, हेनरीज लॉ से लिया गया राउल्ट्स लॉ। हाँ, सो दिस राउल्ट्स लॉ स्टेट्स that for a solution, it states that for a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution। ठीक है, मतलब जो एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, अब आप हीट दोगे तो इससे वेपर्स बनेंगे, है ना। सो ए मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी वेपर्स बनेंगे और जो बी लिक्विड है उसके भी वेपर्स बनेंगे। सो यहाँ पे मान लो ये ए वेपर्स बन गए, यहाँ पे ये बी वेपर्स बन गए। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सारे एक साइड बनेंगे और ये एक साइड बनेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट, आई हैव जस्ट टेकन दिस फॉर सिंप्लिसिटी। सो यहाँ पे इनके वेपर्स बन गए, करेक्ट। अब ये जो वेपर्स होंगे, ए के जो भी वेपर्स होंगे जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना। सो पार्शियल मतलब इंडिविजुअल प्रेशर्स, और इस बी का जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बी वाले वेपर्स जो एक्सर्ट करेंगे उसको हम बोल देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। समझ में आया। सो पी ए सिग्निफाइज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जब आपने इनका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनाया। पी बी क्या होगा, इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वेपर्स इन द सॉल्यूशन मिक्सचर। ठीक है, अब इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, there's one more thing। आप मान लो आपने जो ए और बी लिया ना, ये आपने इंडिविजुअली भी लिए, ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ ए लिक्विड है और इसमें सिर्फ बी लिक्विड है, ठीक है। सो जब इसके वेपर्स बनेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ए के वेपर्स होंगे, और इस सेपरेट वेसल में जिसमें हमने सिर्फ बी लिक्विड लिया है, वहां पे जो वेपर्स बनेंगे दैट विल बी ओनली बी वेपर्स, करेक्ट। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा इन दैट ए वाला, इसको डिनोट करते हैं हम पी नॉट ए से। किसे डिनोट करते हैं, पी नॉट ए से। सो नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर स्टेट में जब होता है। सो यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्योर ए लिक्विड लिया है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज पी नॉट ए, एंड जो हमने सेपरेटली बी लिया है उसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पी नॉट बी। सो यू मस्ट नो अबाउट दिस, पी नॉट ए और पी ए में क्या डिफरेंस है। पी ए जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, एंड पी नॉट ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, जब मतलब सॉल्यूशन नहीं बनाया, in pure state। Likewise, your P naught B will be partial pressure of B in its pure state. I hope it's clear. Okay. Next. So, Raoult's law is basically the partial pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction present in it. So, अभी हमने देखा, हमने पहले लिए ए और बी दोनों के दोनों अलग अलग लिक्विड्स, दिस इज लिक्विड ए, दिस इज लिक्विड बी। इस टाइम पे जब हमने इनके वेपर्स बनाए, ये वेपर्स बने, तो ये जो वेपर्स थे इनने एक डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई किया जिसको हमने बोल दिया क्या, पी नॉट ए, दैट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ए। ठीक है, लाइक वाइज यहाँ पे हमने बी सॉल्वेंट लिया, उसके जो वेपर्स बने ऊपर, उससे जो प्रेशर अप्लाई हुआ डाउनवर्ड साइड पे, उसको हमने बोल दिया पी नॉट B. And then what we did is we mixed both of these together to prepare a liquid solution। अब इस liquid solution में मेरे पास A भी है और B भी है, तो ऐसे इनके सरफेस पे से रैंडमली प्रेजेंट होंगे। हो सकता है एक A हो, दूसरा B हो, फिर दूसरा A हो, B हो, A हो, वापस A हो, B हो। सो दिस इज वेरी रैंडम कि ऊपर सरफेस पे कौन से होंगे, डिपेंडिंग अपॉन सरफेस पे कौन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इधर इनके प्रेशर्स बनेंगे, है ना। अब जो एक
PA होगा that will be the partial pressure of A in the solution and PB जो है that is the vapor pressure of B molecules in the solution phase. ठीक है. So अब ये राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको किसी का भी मान लो इसका ये PA, you have to calculate partial pressure of this A vapor in the solution, then it is directly proportional to इस solution में इसका मोल फ्रैक्शन क्या है. जितना ज्यादा इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा सॉल्यूशन में, चांसेस है उसके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे एंड दैट्स उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा ए का. लाइकवाइज पीबी जो है, पीबी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ B liquid in the solution. That is also directly proportional to the mole fraction of that B in the solution. This is Raoult's law. आप proportionality sign हटाते हो, so PA is equal to, यहाँ पे proportionality sign हटाया तो यहाँ पे क्या आता है P नॉट AXA. So ये बन गया आपका एक फॉर्मूला. सो जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसके ही P नॉट A से, दैट इज वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट. तो आप PB कैलकुलेट करना है तो P नॉट B इंटू XB कर दो, और अगर PA कैलकुलेट करना है तो P नॉट A XA कर दो. ठीक है. अब जब इन दोनों को मैंने इस सॉल्यूशन फेज में लिया तो जो टोटल प्रेशर होगा, the total pressure of this solution, the total vapor pressure of this solution is basically total pressure that is by A plus total vapor pressure that is by B. ये कौन सा लॉ है? This is Dalton's law of partial pressure. That the total pressure of a vessel is equal to the individual partial pressures of all the vapors. So PA plus PB कर दिया हमने. अब इसको लिख दो, यहाँ पे P total will be equal to, put the formula, PA is P naught A XA plus P naught B XB. So आप ये formula use कर सकते हो to calculate your P नॉट ए, P नॉट B या मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B. इस तरीके से यू कैन यूज. ठीक है. अब जो आपके लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं जितने भी, वो दो तरीके के होते हैं. जो इस राउल्ट्स लॉ को जो हमने ऊपर देखा कि PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, इसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे सारे लिक्विड सॉल्यूशंस को हमने क्या बोल देना है? आइडियल सॉल्यूशंस. याद है आइडियल गैसेस होती थी जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती थी. तो वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ. और ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन जो इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको हम बोल देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है, उनको बोल देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ऑलराइट. अब इनके एग्जाम्पल्स करने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के, आइडियल के भी और नॉन आइडियल के भी. अब आइडियल का मतलब क्या है? PA इज इक्वल टू P नॉट A XA फॉलो होता है यहाँ पे, और PB इज इक्वल टू P नॉट B XB भी फॉलो होता है. सो बोथ दीज राउल्ट्स लॉ वाली इक्वेशंस दे आर फॉलोड बाय आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब आप दो ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस बनाओ जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करे, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ. ठीक है. मीनिंग इफ आई हैव टू कैलकुलेट PA, इट इज नॉट इक्वल टू P नॉट A XA. ठीक है. एंड इफ आई हैव टू कैलकुलेट PB, इट इज नॉट इक्वल टू P नॉट B XB. इट इज सम अदर वैल्यू बेसिकली. अभी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, दे कैन बी ऑफ अगेन टू काइंड्स. ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन भी शो करते हैं. सो देयर आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, and then there are non-ideal solutions that show negative deviation from this Raoult's law. So जो positive deviations show करते हैं वो होंगे non-ideal solutions showing positive deviation, and जो negative deviation करते हैं Raoult's law से, वो हैं आपके सारे non-ideal solutions with negative डेविएशन. ठीक है. आपको इस टॉपिक में क्या करना है? एक डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है दैट कम्स ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. सो व्हाट आई विल डू इज क्या बोलते हैं, आई गिव यू अ लिंक वेयर आई विल बी गिविंग ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस टू यू इन डिटेल, सो यू कैन चेक दैट आउट. ओके. आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं विच फॉलो राउल्ट्स लॉ. ठीक है. और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं
the solutions which do not follow Raoult's law. ओके सो यहाँ पे क्या होता है आपका, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आप वो रिपीट कर सकते हो, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे पी ए है अगर तो दैट इज पी नॉट ए एक्स ए. लाइकवाइज पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी नहीं होता. दीज आर नॉट इक्वल टू, एंड आइडियल सॉल्यूशंस में दे आर इक्वल टू. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज, दैट इज जब आप दो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस बनाते हो, है ना, मान लो आपने 10 ml और 10 ml लिया, दोनों के दोनों लिक्विड्स आपने 10-10 ml लिया, तो आपका क्या है, कायदे से 20 ml बनना चाहिए. अगर वो 20 का 20 ml ही बनता है, देयर इज नो डिफरेंस, लाइक 20.1 नहीं बनता या 19.9 नहीं बनता, सो दैट्स एन आइडियल सॉल्यूशन. सो देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग. सो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है आइडियल सॉल्यूशन में, दैट इज 0. दैट मीन्स 10 + 10, अगर मैं 10 ml A लेती हूँ और 10 ml ही B का लिक्विड लेती हूँ, तो इट शुड बी इक्वल टू 20 ओनली. कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग में. यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है, इट इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर मैंने 10 ml की दो क्वांटिटीज ली हैं, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो अपने को एग्जैक्टली 20 नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन मिलेगा. इट कैन बी 20.1 और 19.9 फॉर दैट मैटर, बट विल नॉट बी 20. ठीक है. लाइकवाइज अपनी जो इंथैल्पी होती है, जब हम मिक्स करेंगे दो लिक्विड सॉल्यूशंस बनाएंगे जब, तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है दैट इज 0. दैट मीन्स दो लिक्विड्स को जब आप मिक्स करोगे तो देयर विल बी नो हीट रिलीज, और हीट दैट इज इंपॉर्टेंट टू solubilize these two. So the delta H mixing is 0. That means it is neither endothermic or exothermic in process. While your non-ideal solutions, इनमें जो delta H mixing होता है, it is not equal to 0. It is either endothermic process or exothermic process, है ना. एंडोथर्मिक होगा जब डेल्टा एच जो होगा उसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू होता है, एंड एक्सोथर्मिक होता है जब आपका डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा नेगेटिव होगा. ठीक है. नेक्स्ट आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जब आपके मान लो बिफोर एंड आफ्टर की बात करें, आपने यहाँ पे ए प्योर लिया, यहाँ पे बी प्योर लिया, उसके बाद आपने सॉल्यूशन बनाया ए बी का, तो जो इंटरेक्शंस होंगी वो कैसे होंगी, जो प्योर ए होगा उसमें ए वाली इंटरेक्शंस होंगी, जो प्योर बी सॉल्वेंट है उसमें सिर्फ बी और बी मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन होगी. लेकिन यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ए और बी मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन होगी. सो आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें ए इंटरेक्शन या जो बी interaction, that means जो before interaction थी इन molecules की, the kind of force of attraction that they had, it is almost the same as the AB interaction. मतलब कोई नई वैंडरवाल फोर्सेस या कोई और दूसरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इधर अप्लाई नहीं हो रही है. ए और बी के बीच में उसी तरीके की फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की जैसे पहले ए या बी मॉलिक्यूल्स में थी. ठीक है. लाइकवाइज यहाँ पे नॉन आइडियल में जो ए इंटरेक्शन या जो बी इंटरेक्शन है, इट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन. चाहे तो वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से कम हो सकती है आफ्टर यू डिसोल्यूट द टू दिस थिंग. अब इसके एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसका एग्जांपल लिखो, बेंजीन एंड टोलुइन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. बेंजीन एंड टोलुइन, N-hexane and N-heptane. N-hexane and N-heptane. Please write down. ठीक है. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिंक जस्ट एज आई टोल्ड यू. उसमें आपको एग्जांपल्स थोड़े सेपरेटली करने पड़ेंगे. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो और काइंड का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक नेगेटिव डेविएशन वाला. पॉजिटिव डेविएशन के एक एग्जांपल करना आपने, और नेगेटिव डेविएशन का भी आपने एक एग्जांपल करना है. नाउ नेक्स्ट आर एजियोट्रॉप्स. अब व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? बेसिकली एजियोट्रॉप्स होते हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली, बट उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में मैंने आपको बताया पॉजिटिव डेविएशन भी होती है, नेगेटिव भी होती है. बट देयर आर सम सॉल्यूशंस वेयर देयर इज एन एक्सट्रीमली लार्ज डेविएशन इन पॉजिटिव साइड और इन नेगेटिव साइड. सो उनको एजियोट्रॉप्स कहते हैं.
ठीक है। एजियोट्रॉप्स होते क्या है, ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, मतलब दो लिक्विड्स को जब हम डिसॉल्व करते हैं उससे कोई ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट हो जिसकी क्या हो, इट हैज सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, दैट मीन्स ए एंड बी है ना, दैट मीन्स ए और बी अगर दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं तो उनके कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में और जो उनकी वेपर फेज में है सेम रहती है, दैट मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट रिमेन्स द सेम इन द लिक्विड स्टेट एंड इन द वेपर स्टेट, बिकॉज ऑफ विच जितने आपके मतलब वेपर्स नए बन रहे हैं उतने ही वापस से कंडेंस बैक होके लिक्विड स्टेट में आ जा रहे हैं, सो ओवरऑल नलिफाई हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं दे बॉयल एट अ वेरी कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल, इनके बहुत शार्प बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इस तरीके के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के, ठीक है। सो एजियोट्रॉप्स आर बेसिकली योर बाइनरी मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स व्हिच हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर phase and they boil at a very constant, at a like points में exact boiling point होता है इनका। next minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs, ये दो तरीके के azeotropic mixtures होते हैं, minimum boiling and maximum boiling। जो minimum boiling होते हैं ये कहां से आते हैं, बेसिकली जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है ना फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, सो ऐसे सॉल्यूशंस व्हिच शो अ वेरी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये हो गए आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, विच शो अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, आपको इनके एग्जांपल्स करने हैं, तो जो एथेनॉल एंड वाटर है, एथेनॉल प्लस वाटर, कौन सा वाला, नॉर्मली 95% बाय वॉल्यूम जो हो, 95% एग्जैक्टली, सो व्हेन यू टेक देम इन 95% वॉल्यूम एथेनॉल एंड वाटर, दे फॉर्म अ, क्या बोलते हैं आपका, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दे फॉर्म एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, देन ये हो गया आपका अपना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम का एग्जांपल हो गया आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ठीक है, जिसमें आपने 68% नाइट्रिक एसिड लेना है और 32% वाटर लेना है। सो व्हेन यू टेक 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर इन इट एंड यू मेक अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट, तब उसको आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। Alright guys, thank you so much for watching this video. If it really helped you, hit the like button there and share it with all your friends who are going to take board exams this year. Alright, and you can subscribe to my channel for more such videos on crash course of 12th syllabus chemistry, and notes for all these chapters will be available on my Telegram channel, for which I'll be giving you the link in the description box. Alright, so there'll be a second part for this video where we'll be completing the solutions chapter, all the topics that's left, that is colligative properties and all that. So I'll see you in the next video. Thank you.